Hey, what's up, future leaders? Welcome back to my channel, The Commerce Catalyst. Today, we'll be talking about nature and significance of management as a subpart 1, in which I'll be breaking down the chapter for you. Okay, so before jumping on to the definition of management, let's just understand management in a more realistic way, in a more realistic and relatable approach. This module or any other module that I'll be taking, that is going to be bilingual, so I'll be using both English and Hindi for a better understanding and for a better explanation. अगर अभी देखा जाए, आप जो कर रहे हो, आप खुद को भी अभी आप मैनेजमेंट ही कर रहे हो right now. Now let me explain how. As you can see that I have highlighted a few things from the definition of management. There are three definitions of management, and while answering the question in your business studies paper, you can use any of the definitions, but understanding that definition and understanding the keywords that has to be used in a definition is very, very important. So coming back to what we are doing, what you are doing, you are actually managing. Now let me tell you how. Management is something in which you need to have a goal. Like for right now, you are having a goal that you are here on my channel to achieve 95% plus. So this is your goal that you have in mind, and then you planned for this goal कि okay अभी पढ़ना है, अभी कैसे पढ़ना तो होगा for to achieve this. अभी कैसे पढ़ना है, किन resources से पढ़ना है, किन लोगों से पढ़ना है, ये important है. क्या पढ़ना है, किन लोगों से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या टाइमलाइन होगी, क्या कुछ होगा. That is the resources part that you're using. So basically, you are deploying resources. You're getting into a process in which you need to deploy resources. क्यों deploy करनी है? To achieve a goal. As simple as that. आपको 95% plus लाना है. आपको एक प्रोसेस चाहिए, एक आपको स्ट्रैटेजी चाहिए कि कैसे करनी है, कैसे आपको लाना है 95%. So you got into the process, like for example, you're using my channel to achieve 95%. So I'm the resource. Okay, now I become the resource. And why are you deploying me as a resource? Because you have to achieve 95%. So basically, this is what management is. It is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims. Now, when I go ahead with the chapter, with the module, I'll be breaking down these things for you. ये जो चीज़ें हैं, the definition of management, it comprises of a lot of things. You will find out the words, the concepts like efficiency, effectiveness. You will find the characteristics of management and various case studies in the upcoming slides. Now that you can see that these three management definitions are from three different learned people, but you can also see the things which are common in these three definitions, that is process. तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है. अब प्रोसेस का क्या मतलब है? प्रोसेस एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है जिसमें काफी सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं, काफी सारे स्टेप्स यूज होते हैं. उसको जब कंबाइन करते हैं तो वो प्रोसेस होता है. आपको अगर एक थोड़ा इसका ब्रीफ दिया जाए तो हमारे मैनेजमेंट में बहुत सारे स्टेप्स और बहुत सारे प्रोसेसेस हैं विच स्टार्ट्स फ्रॉम प्लानिंग एंड इट कंटिन्यूज टिल कंट्रोलिंग एंड देन अगेन इट स्टार्ट्स विद प्लानिंग अगेन, जो आप आने वाले मेरे मॉड्यूल्स में पाएंगे. सेकेंड इज देयर हैज टू बी अ गोल. मैनेजमेंट कुछ जो होता है, कोई भी मैनेजमेंट जो होता है वो एक गोल अचीवमेंट के लिए होता है. कैसा भी मैनेजमेंट ले लो, बी इट एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयर हैज टू बी अ गोल. ऑर्गेनाइजेशन तो एक बहुत बड़ी चीज बोल रही हूँ. इफ यू कम डाउन टू अ डिपार्टमेंट, कम डाउन टू अ टीम, जैसे मान लो आपको स्कूल में प्रोजेक्ट्स मिलते हैं या आपको एक ड्रामा के लिए आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है, तो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. मैनेजमेंट करने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आवर मदर्स, दे कुक एट होम, द ऑब्जेक्टिव इज टू फीड द फैमिली. सो एवरीबडी, right from if you see in your household to big 4, big 5 organizations, सारे के सारे मैनेजमेंट कर रहे हैं. Why? Because they have to achieve a goal. Goal achieve कैसे होगा?
हमें एक प्रोसेस फॉलो करना होगा विच इज़ कॉमन इन ऑल द 3 डेफिनेशंस, और जितने भी आप डेफिनेशंस पढ़ोगे आगे भी मैनेजमेंट के, उसमें भी ये चीज़ें कॉमन होंगी। तो ठीक है भाई, हमारे पास एक एम है, हमारे पास एक प्रोसेस भी है फॉलो करने को, बट वो प्रोसेस को फॉलो करेगा कौन? तो उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे इंडिविजुअल्स, टीम में करेंगे, एज एन इंडिविजुअल करेंगे। अब उन लोगों को रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑल्सो द मटीरियल रिसोर्सेज। जो भी हमको लगेगा टू अटेन द गोल विल बी यूज्ड टू अकम्प्लिश द गोल थ्रू अ पर्टिकुलर वेल डिफाइंड प्रोसेस। दैट इज वॉट मैनेजमेंट इज। एंड इसमें आपको बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अभी ही हाईलाइट हो जाएंगे मैनेजमेंट के, जो आप आगे वाले स्लाइड्स में पढ़ोगे। सो मूविंग ऑन, and like I already said that we'll be doing different case studies, so let's do a quick case study here. Meera and Karan of Green Bite, which is an organic snack, went to Shark Tank. Their goal is to fulfill 10,000 orders in a quarter. The result is they achieved 10,000 orders target. The constant here is to rush the final order, they paid huge overtime and spent 20% over budget. Now the sharks criticized them that you should achieve the goal, but your lack of systematic approach to control cost and resources makes your business unsustainable. Now here you need to identify and define the concept being discussed in the case. Now this is a very specific case study. यहाँ पे आप keywords को देख सकते हो. You can identify the keywords and quickly answer कि यहाँ पे किस concept के बारे में बात हो रही है. So what could be the possible keywords that we could highlight in here? Their goal, ठीक है, यहाँ पे एक goal की बात हो रही है, right? And they have deployed some resources, right? They paid huge overtime, मतलब ये इन्होंने human resource को क्या किया? Huge overtime pay किया. So यहाँ पे resources की बात हो रही है, goal तो achieve हो गया, लेकिन resources जो हैं वो business के लिए unsustainable से हैं. तो यहाँ पे किस concept की बात हो रही है? What should be the answer? जिन्होंने भी आंसर मैनेजमेंट दिया, डेफिनेटली इट्स अ करेक्ट आंसर. यहाँ पे you have to use any definition to define management and do not miss out on the keywords. अगर आप particularly किसी person को quote कर रहे हो तो definitely उनका word by word आपको आना चाहिए and then you will quote the person. Now moving ahead, I think this is my personal favorite. Effectiveness versus efficiency. इसको जो है ना मैंने बिल्कुल bifurcate कर दिया आपके लिए. जहां भी इफेक्टिवनेस की बात आएगी आप बोलेंगे ये टाइम ओरिएंटेड है. अगर कोई आदमी इफेक्टिव है तो वो आपका टाइम ओरिएंटेड बात हो रही है. यहाँ पे एफिशिएंसी समथिंग कॉस्ट ओरिएंटेड, मतलब आपका जो रिसोर्स है वो कितना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. ये दोनों कंसेप्ट ऐसे तो इंडिविजुअली अलग अलग हैं बट दे आर इंटर रिलेटेड इन बिजनेस. When you have to achieve a goal, आप ऐसा करते हो क्या कि गोल अचीव करना है, कोई बात नहीं, सारा रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर देते हैं, लॉस में चले जाते हैं? ऐसा तो नहीं होता. या आपको एक गोल दिया हुआ है, इतना ज़्यादा बचत कर लो कि टाइम पे हो ही ना पाए. सो इट ऑलवेज गोज हैंड इन हैंड. आपको दोनों इफेक्टिव और एफिशिएंट होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैच है. From time to time, businesses has to compromise on, these parameters. अपने हिसाब से इनको adjust करनी पड़ती है चीज़ें in order to, cope up with the environment. क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे characteristics के बारे में, you will find out how dynamic management could be. कितना ज़्यादा समय के साथ, environment के साथ कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है इसको. And the organizations have to adapt themselves. अब जल्दी से क्विक सी केस स्टडी कर लेते हैं. मैक्स पावर लिमिटेड हैज अ मैंडेटरी ऑर्डर्स टू सप्लाई 5,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट टू अ मेजर क्लाइंट बाय द एंड ऑफ द मंथ. ये क्या है? ये गोल है, ठीक है. टू मीट दिस क्रिटिकल डेडलाइन द प्रोडक्शन मैनेजर अरुण वर्कड हिज टीम ऑन डबल ओवरटाइम शिफ्ट्स एंड हायर्ड टेम्पररी लेबर्स एट प्रीमियम वेजेस. Arun successfully delivered all 5,000 units on the last day. Now think about this case study.
ये डेफिनेटली केस स्टडी किस बारे में है? मैनेजमेंट के बारे में तो डेफिनेटली है, बट मैनेजमेंट के किस कंसेप्ट के बारे में है? दोनों, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों के बारे में है। सो नाउ यहाँ पे अगर हम लोग एक बर्ड आई व्यू देते हैं इस पे, तो यू कैन सी दैट द प्रोडक्शन मैनेजर हैज़ टू मीट द डेडलाइन। 5000 यूनिट्स बनाना है, हमको रिसोर्सेज और लगेंगी, ठीक है, लेकिन हमको टाइम पे वो फिनिश करना है। लाइक आई टोल्ड यू कि डायनामिज्म की वजह से मैनेजमेंट हैज़ टू अडेप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सो यहाँ पे भी इसने क्या किया, ये नाउ यू हैव टू टेल मी दिस पर्सन विच कंसेप्ट डिड ही कीप इन माइंड एंड कौन सा कंसेप्ट थोड़ा सा डिरेल हो गया। सो गिव मी द आंसर। बिल्कुल 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 सही आंसर। जिसने भी बोला इफेक्टिव है, तो यस, टाइम मेंटेन कर ले गया, उसने समय पे प्रोडक्ट्स को दे दिया, बट हाउएवर जो कॉस्ट था टेम्पररी स्टाफ का, प्रीमियम रेट्स पे, तो जो बजट है वो थोड़ा सा जो है इधर उधर हो गया एंड अरुण वॉज नॉट एफिशिएंट इनफ बट ही वॉज इफेक्टिव। तो ये बिजनेसेस जब आप देखेंगे तो बिजनेसेस ये अपने एंड पे डिसाइड करते हैं कि मैं कितने या हम कितने हद तक, कितने लिमिट तक इस चीज़ को, इस मार्जिन को ले सकते हैं दैट वी कैन बी अ बिट बिट इफेक्टिव, वी नीड टू बी इफेक्टिव। तो कितना हम लोग एफिशिएंसी में नीचे थोड़ा जा सकते हैं, हम लोग थोड़ा ज़्यादा रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर सकते हैं। दैट इज़ द डायनामिज्म एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ मैनेजमेंट। अब जरा ये केस स्टडी देखो। अ मार्केटिंग कंपनी डिजिटल ड्रीम्स सेट अ गोल टू एक्वायर 100 न्यू क्लाइंट्स फॉर इट्स डिजिटल सर्विस इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ देखो टाइम की बात हो रही, पहले क्वार्टर में 100 क्लाइंट्स चाहिए। द मार्केटिंग मैनेजर प्रिया फोकस्ड intensely on cost control. She streamlined the sales process to cut travel expenses and drastically reduced the budget for digital advertising. By the end of the quarter, the company had only acquired 75 new clients, but did so with the lowest operational cost in the company history. अब यहाँ देखो क्या हो रहा है। यहाँ प्रिया जो है मार्केटिंग मैनेजर है, 100 क्लाइंट्स चाहिए एंड ऑफ द क्वार्टर तक, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, क्वार्टर तक नहीं आए 100 क्लाइंट्स, सिर्फ 75 क्लाइंट्स आए थे। बट शी ऑल्सो मेड अ हिस्ट्री बाय कटिंग डाउन द ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ द कंपनी। यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा कंसेप्ट जो है फोकस में है और कौन सा थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो गया। तो यस, यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्टिवनेस कम दिख रहा है, 75 क्लाइंट्स ही आए हैं जो डेडलाइन दी गई थी उसमें, बट she was efficient enough and she also made a history. Like we already discussed that in this situation Priya was efficient because she used resources optimally and kept cost minimum. However, she failed to achieve the primary goal जो कि आपका 100 clients था for the quarter, but 75 clients ही आ पाए। कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। I am giving you the case studies so that you could unlock the potential of case studies. आप एक बार कंसेप्ट समझ जाओगे तो ऐसी कितनी भी केस स्टडीज आएगी, you will be able to crack them in one go. केसेस को पढ़ते ही you will understand what concepts have been talked about and you will never go wrong with your answers. If you liked my module so far, hit the subscribe button.